Rocks and minerals. Our earth is made up of rocks. The earth is made up of three layers: crust, mantle and core. और जो सरफेस हमें दिखाई देता है दैट इज क्रस्ट. क्रस्ट के नीचे वाली जो लेयर है दैट इज नोन एज मेंटल, और मेंटल के नीचे जो सबसे अंदर वाली लेयर है ऑफ द अर्थ दैट इज नोन एज कोर. रॉक्स मिनरल्स के बने हुए होते हैं बेटा, एंड ये अलग अलग मेथड्स से बनती हैं. जिस भी मेथड से रॉक बना है, डिपेंडिंग ऑन दैट rocks are divided into three types: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. जब कभी वोल्केनो इरप्ट होता है, what happens at that time? Now how is it is erupting? Inside the earth heat and temperature ज़्यादा होने की वजह से things are in the molten form. और जब कभी प्रेशर की वजह से थ्रू अ क्रैक that molten material comes out on the surface that is known as volcano. और ये जो molten material है inside the earth that is known as magma. और जब वही molten material अर्थ सरफेस पे आ जाता है that is known as lava. Inside the earth it is known as magma. The molten material is known as magma, and on the earth surface it is known as lava. और वो ओपनिंग जिसके थ्रू मैग्मा सरफेस से पे पहुंचता है दैट ओपनिंग इज नोन एज वेंट, और इन अदर वर्ड्स हम इसे कह सकते हैं माउथ ऑफ द वोल्केनो. जियोलॉजिस्ट स्टडी द सरफेस ऑफ द अर्थ. दे स्टडी द अर्थ बाय स्टडिंग द रॉक्स, और फिर उन्हें पता चलता है हाउ द रॉक्स आर फॉर्म्ड. So depending upon how rocks are formed, rocks are divided into three groups: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Igneous rock. The word igneous means made from fire or heat. आग से बने हुए. So as the name is suggesting, so the rocks which are made from the hot molten material. जब कभी वोल्केनो इरप्ट होता है सो उस मोल्टन मटेरियल के कूल होने से एंड हार्डन होने से जो रॉक्स बनते हैं दोज रॉक्स आर नोन एज igneous rocks. So types of igneous rocks are granite, basalt and pumice. Granite is the rock that is formed when the volcanic material hardens under the ground. जब volcanic material under the ground जम जाता है, कूल होके जम जाता है, it changes into granite. It is hard. और ये क्वार्ट्ज फेल्सपर और मीका से मिलके बना हुआ होता है, and it is found in different colors. Second type of igneous rocks are basalt. Basalt जब लावा अर्थ की सरफेस पे कूल होता है और जम जाता है, the rock that is formed is known as basalt. और ये डेंस और डार्क कलर का होता है और दानेदार होता है. Third type of rock is pumice. This is light colored, light weight rock,
और इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्पॉन्ज की तरह होता है, बिकॉज ये बनता है व्हेन द लावा कूल्स क्विकली, और जब लावा कूल होता है उसमें से जो एयर रिमूव होती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, सो वो जो होल्स की फॉर्म, जहाँ से होल्स में से वो हवा बाहर आती है, दैट गिव इट स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर, and it is so light that it can float on water. Dentist pumice को use करते हैं for polishing our teeth, and it is also used as a scrubber to remove the dead skin from the body. Next type of rocks are sedimentary rocks. As the name is suggesting, the rocks formed by the deposition of sediments or deposition of the layers. एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रिपीट होती जाती है, डेपोजिशन होती जाती है वन अपॉन द अदर लेयर, और जो नीचे वाली लेयर है दैट इज गेटिंग प्रेस्ड एंड इट हार्डन्स एंड चेंजेस इनटू रॉक. सो ये जो रॉक्स लेयर्स के सेटल होने से बनते हैं, दीज रॉक्स आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स. Types of sedimentary rocks. First is sandstone. Sandstone is formed from the grains of the sand. जब sand particles एक दूसरे के साथ जुड़ के hard हो जाते हैं, they make sandstone. It is found in yellow, grey, red and brown colors. और इसे हम buildings बनाने में use करते हैं because it is stronger and it is easy to carry. Red Fort in Delhi है जो बेटा, that is made up of red sandstone. Second type of sedimentary rock is conglomerate. Conglomerate जब smooth round stones and pebbles एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं and they make the rock that is known as conglomerate. Next type of rock is coal. It is also known as fossil fuel. Why? Because coal is a sedimentary rock that can be burnt, जो जलता है, that we use as fuels, and it is formed by the plants and animals that got buried under the earth millions of years ago. So जब time गुजरा, they turned into coal. Next is limestone. Limestone is a sedimentary rock जो under the ground बनता है. This is the only sedimentary rock which is formed under the ground, and it is formed from the shells and bones of the sea animals. और limestone यूज़ होता है for making glass, bricks, cement, and the chalk we use to write on the blackboard is also a type of limestone. Shale is also a type of sedimentary rock which is formed by deposition of mud. It is a smooth rock and it is formed from the mud जो ओशन या लेक के बेड के ऊपर सेटल हो जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, ब्राउन, रेड एंड ग्रे. नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंज. So as the name is suggesting, rocks formed by changes, और ये changes कौन कर रहा है? Heat and pressure in igneous and sedimentary rocks. Change किस में हो रही है? In igneous and sedimentary rocks. So metamorphic rocks are formed from igneous and sedimentary rocks by changes. Those are caused by heat and pressure. जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हीट या प्रेशर
का इफ़ेक्ट होता है तो ये चेंज हो जाते हैं इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। नई तरह का जो रॉक बनता है दैट इज़ मेटामॉर्फिक। फर्स्ट टाइप इज स्लेट। स्लेट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक जो सेडिमेंट्री रॉक शेल से बना होता है। इट इज़ हार्डर देन द शेल एंड स्लेट is used to make slates and blackboards. Marble. It is another type of metamorphic rock which is formed from limestone. और मार्बल है बेटा वो अलग अलग कलर्स में मिलती है एंड इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। जो हमारा ताजमहल है दैट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल स्टोन। क्वार्ट्ज़ाइट। क्वार्ट्ज़ाइट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक जो सैंडस्टोन में चेंजेस आने से बनता है एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन डिफरेंट कलर्स येलो, ब्राउन, पिंक एंड रेड। नीज। दिस इज़ मेटामॉर्फिक रॉक जो इग्नियस रॉक ग्रेनाइट से बनता है एंड इट इज़ हैविंग इर्रेगुलर बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? दीज आर द अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्स जिनमें केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। सो मिनरल्स जिनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर नोन एज ओर्स। सो मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स, वो मिनरल्स जिनमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दोज आर नोन एज ओर्स। बॉक्साइट is the ore of aluminium, hematite ore of iron, and from copper pyrite we get copper. कुछ रॉक्स में नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे ग्रेफाइट एंड बोरेक्स भी मिलते हैं। जेम्स एंड प्रेशियस स्टोन्स भी मिलते हैं। डायमंड्स आर mined in Africa and USA. These are coming from the rock known as peridotite. Minerals हमारे कई काम आते हैं। These are used in electronic industry, in the fertilizers production, talcum powder बनाने में, cement बनाने में, jewelry, pencil leads, बर्तन, कॉइन्स, बिल्डिंग्स बनाने में एंड फॉर कटिंग ग्लास। कोल। मेटल ओर्स एंड मिनरल्स के बिना अर्थ क्रस्ट में से हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल कैसे बनता है? व्हेन डेड वेजिटेशन मीन्स डेड प्लांट्स कई सौ साल पहले वो धरती के अंदर दब गए, सो बाय द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वहाँ पे देयर वाज लैक ऑफ एयर, सो दिस वेजिटेशन चेंज्ड इनटू कोल एंड इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स। और कोल हमें काम आता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, ड्रग्स, plastics, and it is used as a fuel for cooking and also in blast furnaces in steel industries. Petroleum. Petroleum word beta is meaning that oil we get from the rocks. Petra means rocks, oleum means oil. So name is suggesting that it is a mineral oil found in rocks. Petrol is formed under the seas. समुंदर में पाए जाते हैं जो died tiny plants and animals, bacteria
जब उनकी डेथ हो जाती है, दे सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड दे गेट मिक्सड विद सैंड एंड सिल्ट। और इनकी जो बॉडीज़ हैं वो पूरी तरह गलती सड़ती नहीं है। दे आर क्रश्ड बाय वेट ऑफ सेडिमेंट्स, उनके ऊपर सेडिमेंट, उनके ऊपर लेयर्स सेटल होनी शुरू हो जाती हैं और उनके जो रिमेन्स होते हैं दे मे बिकम अ मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम। वी गेट पेट्रोलियम बाय डिगिंग वेल्स अंडर द ग्राउंड और फिर उसमें से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स बाहर निकालते हैं। सो वी गेट पेट्रोल, वी गेट नेफ्था, kerosene, diesel, paraffin wax and tar by refining the petroleum. So it is used as fuel in vehicles and jet engines in the form of petrol and diesel. Kerosene की form में we are using it as a fuel in our homes and in the jet engines. Diesel we are using in the diesel engine vehicles. Paraffin wax हम use करते हैं for making candles, waterproof cartons and for making wood polish. और ये जो coal tar होती है that we are using for making roads and plastics. Natural gas. Natural gas भी रॉक्स में ही पाई जाती हैं लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। कैसे बनी है? बाय हाफ डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। जब वो पूरी तरह नहीं गले सड़े सो उनके हाफ डिके से नेचुरल गैस बनती है और ये बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है बिकॉज इट लीक्स अवे फ्रॉम द टाइनी स्पेसेस इन द रॉक्स। नेचुरल गैस को ग्राउंड में से पंप नहीं करना पड़ता। जैसे ही ड्रिलिंग स्टार्ट होती है इट कम्स आउट नेचुरली, अपने आप बाहर आती है। एंड मीथेन इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस। लिमिटेशंस ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। इनकी कुछ कमियां हैं because it takes millions of years to form. कोल एंड पेट्रोलियम को बनने में millions of years लगते हैं but they get burnt up in few minutes. So the energy sources which were once used up and that cannot be filled up, ऐसे जो sources हैं इन्हें हम बोलते हैं non renewable. एक बार ये यूज़ हो गए, दोबारा बनने में इन्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, दोबारा ये जल्दी नहीं बनते। सो वंस दे आर कंज्यूम दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड ईजीली। सो ये जो सोर्सेस हैं दीज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगर बेटा हम इनकी कंजर्वेशन नहीं करेंगे देन सून वी विल get the coal and petroleum products finished. So हमें जो हमारे sources of energy हैं इनको renewable form वाले sources energy के use करने चाहिए। Now first of all, what are the renewable sources of energy? These are the sources of energy that can be used again and again. So renewable sources of energy को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी रिप्लेनिश्ड, अपने आप ये साइकिल से कंप्लीट हो जाते हैं। सो लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। दीज आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट नेवर गेट एग्जॉस्टेड, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। सो वी कैन यूज़ सोलर सेल्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी. We can use windmills for making wind energy, using wind energy for generating electricity, for lifting water from the wells and for grinding flour. जो wind energy है
और ये जो जितने भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं दे कॉज लेस पोल्यूशन. So we must take care while using any source of energy. So we must conserve energy. We should not waste it. Thank you, beta.